Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss UPSC Mains 2023 Ethics paper questions. So I have already recorded few lectures in which I have discussed questions of ethics paper and how to read those questions, interpret those questions, analyze those questions, and what content you're supposed to write in those questions. Okay, so now in this lecture, I'm going to discuss one more question. Okay, so from section A, question 4, subquestion B, that is I am going to discuss with you. This question is about moral intuition and moral reasoning. Okay, so let's see what the question is. Differentiate moral intuition from moral reasoning with suitable examples. Okay, तो पहले तो डिफरेंस पूछ रहे दोनों का, सो डिफरेंशिएट और उसके जस्टिफिकेशन में कुछ एग्जांपल्स भी दो. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नाउ गाइस सी, ये जो मोरल इंट्यूशन बहुत सारे ऐसी कोर टर्म्स यूपीएससी पूछती है. सो फर्स्ट कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे कोर टर्म्स क्वेश्चन में आए, फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन देम. सो पहले मोरल इंट्यूशन डिफाइन करो, मोरल रीजनिंग डिफाइन करो, देन गो ऑन डिफरेंशिएटिंग देम और वहीं पे कहीं पे उसके एग्जांपल्स भी डाल देना. तो पहले व्हाट इज मोरल इंट्यूशनिज्म, मोरल रीजनिंग. तो मोरल रीजनिंग तो गाइस एज यू स्टडी इथिक्स क्लास, ओके, इथिक्स क्लास में लेक्चर पढ़ के यू रियलाइज ओके डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इथिक्स, मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, देन डिस्क्रिप्टिव इथिक्स. देन नॉर्मेटिव इथिक्स में वर्च्यू इथिक्स है, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट इथिक्स है, डिओंटोलॉजी इथिक्स है, राइट्स इथिक्स है. तो ये सारी ब्रांचेस के बारे में जान के बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू अप्लाई ऑल द इथिकल पैरामीटर्स. और ये करके देन यू रियलाइज व्हाट इज द प्रोस कॉन्स ऑफ ऑल दिस थियरीज, थिंकर्स, and what I should do, okay, and what is the right decision. Yeah, that finally you come to conclusion. So you apply this moral reasoning, ethical reasoning to the process. वो बोला जाता है moral reasoning. But moral intuition जो है ना guys, that something you know by intuition. Okay, so intuition is something very naturally is there with us. बहुत सारी चीजें कोई reasoning नहीं, we just understand that they are good and they are bad. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल लार्जली ये मोरल इंट्यूशनिज्म सिर्फ इंसानों में नहीं है. ओके, पूरी इथिक्स में एक थ्योरी है मोरल इंट्यूशनिज्म. सो ये मोरल इंट्यूशनिज्म और इथिकल इंट्यूशनिज्म, इथिकल एग्जिस्टेंशियलिज्म, ओके, दिस थ्योरीज आर देयर. सो इथिकल इंट्यूशनिज्म ये जो थ्योरी है, इसका सिंपल कहना है कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी नो बाय इंट्यूशन. वी डोंट हैव टू बी टोल्ड एक्सक्लूसिवली और टॉट एक्सक्लूसिवली सम थिंग्स. ओके, वी जस्ट अंडरस्टैंड देम एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. Forget about human being. Even as animals, most of the animals have this little bit of intuitionalism, the side of ethical intuitionalism. Most animals don't kill their own species, don't eat their own species. Cannibalism is wrong. ये largely हर species को समझ में आता है. एक kind of वो intuition से ही समझ में आ रहा है. Okay, yeah, every mother in animal world knows that I should take care of my kid to death. Okay, तो ये भी एक intuitionism से ही लिंक करता है. तो वैसे इंसानों को भी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ओके, वी जस्ट लर्न नो बाय इंट्यूशन दैट आई शुडंट हर्ट स्मॉल बेबीज, ओके, आई शुडंट हर्ट ओल्ड एज पीपल. ओके, तो इस तरह के बहुत सारी जो चीजें जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वी डोंट अप्लाई, ओके, मोरल पैरामीटर्स वी डोंट अप्लाई, इज मोरल इंट्यूशनिज्म. ओके, सो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द मोरल इंट्यूशनिज्म डेफिनेशन, दैट इट इज अ इमीडिएट gut level emotional response or judgment. So immediate emotional response, gut level emotional response, you don't involve in a complex moral reasoning, okay, in this process. Then but moral reasoning is not immediate gut level emotional response. It is not gut level judgment that you pass. Moral reasoning involves deliberate moral cognitive process. Deliberately you apply cognitive process, you apply different moral assumptions, moral parameters to come to conclusion कि राइट्स इथिक्स सही या डिओंटोलॉजी सही, कांट ज्यादा सही या बेंथम ज्यादा सही. ओके, यू अप्लाई डिफरेंट पैरामीटर्स. सो इट इज अ इथिकल रीजनिंग बिफोर एक्शन. ओके, आपके सिलेबस में जो वर्ड है इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा, तो ये इथिकल रीजनिंग करके मोरल डायलेमा को सॉल्व करना, दैट इज नथिंग बट दिस मोरल रीजनिंग व्हाट इट्स टॉक अबाउट. सो इट इन्वॉल्व्स इथिकल रीजनिंग बिफोर एन एक्शन. जो प्लेटो अपनी थ्योरी में प्रूडेंस की बात व्हेन इट डज, what is the definition of prudence? Right reasoning before an action. Okay, और ये जो moral reasoning word है guys, right reasoning before an action, prudence, okay, ये नॉर्मल रीजनिंग तो हम कोई भी चीजों में करते हैं, मोबाइल फोन कौन सा खरीदना, ये तो रीजनिंग है. बट मोरल डिसीजन से पहले जो रीजनिंग करते हैं दैट इज मोरल रीजनिंग. तो नॉर्मल बुद्धि, लेकिन उस बुद्धि के साथ जब विवेक जुड़ जाता है,
ओके, और उससे भी हायर लेवल सत विवेक बुद्धि। तो ये सत विवेक बुद्धि जो है ना इज नथिंग बट द इंडियन वर्ड फॉर दिस मोरल रीजनिंग। सो ये सत विवेक बुद्धि का डेवलप होके कोई आप डिसीजन लेते हो, दैट्स मोरल रीजनिंग। सो इथिकल रीजनिंग बिफोर एन एक्शन, ओके, दैट प्रूडेंट माइंड, विजडम माइंड। विजडम भी अलग अलग टाइप का होता है। मोरल विजडम गाइडेड माइंड दैट हेल्प्स यू टेक डिसीजन, और उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट्स मोरल रीजनिंग। Then conscious evaluation of moral dilemmas using ethical principles and moral frameworks. So moral reasoning is more conscious evaluation. Okay, आप consciously सोच रहे हो, cost benefit analysis कर रहे हो। बेंथम ने अपनी जो थ्योरी में यूटिलिटी कैलकुलस दिया, you apply that. You apply all 7 parameters of calculus. Okay, certainty, fecundity, propinquity, duration, extent of pleasure, ये सारा कैलकुलेट करके you take a decision, you tabulate and take a decision. या कांत का you apply entire theory कि is this principle universal, and if it is universal I should act on categorically on it, and I should act as a imperative. Okay, categorical imperative, I shouldn't act on this principle as a hypothetical imperative. ये सारा conscious evaluation करके कोई चीज करते हो, that is moral reasoning. So conscious evaluation of moral dilemma using ethical principles and moral frameworks. Okay, then moral intuition, उसमें और क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है? So in moral intuition guys, it is a quick and instinctual process. Okay, moral intuition में बहुत quick process काम करती है, बहुत quickly you take decision. Moral reasoning में time लगता है, आपको बहुत सोच समझ के decision लेना पड़ता है, पर बहुत बार फिर इतना सोचने को time नहीं हो सकता. Okay, you have to take very quick decision through intuition. अब for example, you are on a boat and if you are a boy, then your mother, wife and daughter is drowning. If you are a girl, then your father, your son and your husband is drowning. You can only say one person. अब यहाँ पे आप क्या मोरल कैलकुलेशन करते बैठोगे, मोरल रीजनिंग करते बैठोगे? नॉट पॉसिबल. ऑन स्पॉट जो डिसीजन लेना है, जो गट से लगा कि आई कैन सेव हिम इजीली, आई सेव्ड हिम. सो यहाँ पे कोई मोरल कैलकुलेशन नहीं है. इट इज वेरी इमीडिएट गट लेवल थिंकिंग, एंड सो इट इज वेरी क्विक इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस. ओके, अगर कोई आपके सामने सड़क पे गिरा, ओके, कोई गाड़ी आ रही है, वो मर सकता है. ओके, यहाँ पे कोई मोरल रीजनिंग नहीं करते. वी क्विकली ट्राई टू हेल्प हिम, ग्रैब हिम एंड जस्ट हेल्प हिम. ओके, या कोई बाइक से स्किड होता है, वी जस्ट डिसाइड टू गो एंड हेल्प आउट. वहां पे वी डोंट डू इन एनी मोरल रीजनिंग कि वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, खुद गिरा है तो उसकी गलती है, आई शुडंट गो एंड हेल्प. नो, वी डोंट डू दैट. वी जस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट गट लेवल इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स, और उससे अगर आपकी मोरालिटी आ रही है, दैट्स इथिकल इंट्यूशनिज्म. ओके, द बेसिक प्रोसेस. या कोई सोल्जर है, एक घर में एक छोटा बच्चा है, दूसरे घर में 5 लोग हैं, अब किसको वो बचाने जाए? तो वहां पे ये कैलकुलेशन नहीं करते बैठता कि वो मुझे एक बच्चा है, वो बच्चा है तो उसको पहले बचाऊं, या फिर यहाँ पे ज्यादा 5 नंबर है, यूटिलिटी थ्योरी सेज मैक्सिमम प्लेजर, तो 5 लोग, ही डोंट हैव इवन दैट मच टाइम. तो सोल्जर का कोई भी डिसीजन ऑन स्पॉट उसको जो सही लगे, लेफ्ट में गया, राइट में गया, ही सेव्ड आइदर अ किड और 5 पीपल. सो वो जो गट फीलिंग से क्विक डिसीजन जो आते हैं मोरालिटी में होते हैं, दे आर गाइडेड बाय दिस मोरल इंट्यूशनिज्म. Okay, so don't involve, so intuitionism doesn't involve conscious thought or analysis. Okay, कोई deliberate conscious thought processing नहीं होती इसमें. While moral reasoning involves learning moral paradigms and ethical reflection. So moral reasoning में you learn moral paradigms. Ethics के क्लास में बैठ के आप सारे थिंकर सुन रहे हो, एक दूसरे पे उनके क्रिटिसिज्म सुन रहे हो, उनके आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो, ये क्यों सही, वो क्यों सही, अपने अपने सबके जस्टिफिकेशन, और ये सारे मोरल पैराडाइम सुन के यू इथिकली रिफ्लेक्ट ऑन देम. सो इथिकल रिफ्लेक्शन एक वर्ड है इथिक्स में. व्हाट दिस इथिकल रिफ्लेक्शन सेज कि आप मिरर में जब देखते हो, व्हाट यू ऑब्जर्व इज योर रिफ्लेक्शन. तो वहां पे मिरर में आप ये नहीं सोचते कि ये मैं ही हूं क्या, इज दिस अक्षय कदम, ओके, या मैं ही हूं क्या वो आदमी, यू नो यू इट्स यू. बट आप जब मिरर में देखते हो, यू जस्ट लुक एट यू एंड ट्राई टू एनालाइज एट हायर लेवल. हाउ एम आई लुकिंग, वेदर दिस शर्ट एंड जीन्स आई एम वेयरिंग, इज इट लुकिंग गुड, ओके, वेदर माय ड्रेसिंग सेंस इज गुड. ओके, सो ये जो सारे रीजनिंग खुद के लुक्स पे यू रिफ्लेक्ट मोर, ओके, दैट इज इथिकल रिफ्लेक्शन. तो मोरल रीजनिंग में वो इथिकल रिफ्लेक्शन होता है. नाउ यू नो द ऑल बेसिक ऑफ इथिक्स, basic parameters of ethics. Now you reflect them at higher level to decide what is right, what is wrong, what is more appropriate, etc. So moral reasoning is that higher level debate over moral paradigms and ethical reflection. It also involves meta-ethical thinking or higher order or second order moral theorizing. तो इसमें higher order या meta-ethical thinking भी होता है. जैसे आपके
कंप्यूटर साइंस में डेटा एंड मेटा डेटा. तो डेटा इज रॉ डेटा, मेटा डेटा इज हायर लेवल डेटा. सेम इथिक्स में भी नॉर्मेटिव इथिक्स, जिसमें ये रूल वो रूल होते हैं, लेकिन ये रूल से भी हायर लेवल का जो डिसीजन होता है, हायर ऑर्डर डिसीजन मेकिंग, सेकंड ऑर्डर मोरल थियराइजिंग, ओके, हायर ऑर्डर मोरल थियराइजिंग, जिसको बोला था एनालिटिकल इथिकल थियराइजिंग या मेटा इथिकल थियराइजिंग. तो ये जो मेटा इथिक्स है, ओके, ये भी इन्वॉल्व है मोरल रीजनिंग में, कि जानवरों को खाना ही नहीं खाना. महावीरा ने जो कहा दैट देयर शुड बी एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, बुद्धा ने कहा मरे हुए जानवर को खा सकते हो. ओके, एंड बहुत सारे रिलीजन में इट इज नॉट इवन अ टैबू इशू वेदर टू ईट और नॉट, ये डिबेट भी नहीं है. सो देन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? तो ये इसमें क्या सही क्या गलत ये सोचने से पहले हमें हायर लेवल रीजनिंग करना पड़ता है. दैट इज वेदर एनिमल हैव राइट्स. ओके, शुड आई केयर अबाउट एनिमल राइट्स? ओके, कैन वी मोरली फॉल्ट लायन फॉर किलिंग अ रैबिट? Okay, if I eat animal as a food, okay, is it justifiable or not? Or whether I torture animal for fun, is it justifiable or not? ये higher level reasoning करना, that is meta ethics. Moral reasoning में वो meta ethics भी involved होता है, extreme higher level debate over those theories, thinking. तो वो भी एक difference है दोनों में. Then moral intuitionism, okay, उसमें in moral intuitionism, okay, moral intuitions develop with values, emotions and past experiences. So now guys, what are other difference in moral intuitionalism and moral reasoning? So guys, in moral intuitionism, so at least you discuss this question at 4-5, you can discuss 4-5 differences, okay, at 4-5 level. So that will be enough because it's only 10 marker question, okay. So next difference in moral intuitionism and moral reasoning, that moral intuitions develop with value, emotion and past experiences. ओके, सो आपका जो मोरल इंट्यूशन है वो डेवलप हो जाता है विथ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग एटसेट्रा. आप बचपन से योर पेरेंट्स आर वेरी केयरिंग अबाउट इवन स्मॉल डेलिकेट थिंग्स इन लाइफ और इवन अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा, हर चीज़ों के बारे में, नेचर के बारे में यू विल डेवलप मोरल इंट्यूशनिज्म इन दैट मैनर वेयर यू ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द नेचर अराउंड यू इन अ वेरी इथिकल मैनर. सो मोरल इंट्यूशनिज्म का जो डेवलपमेंट है लार्जली हैपन्स, okay, through emotional experiences, past experiences, develop with our value, as value system develop, intuitionism develops, and it also influenced by cultural norms and upbringing. okay, आपका जो culture के norms है, upbringing है, okay, वो भी बहुत impact करते हैं. inculturation, acculturation processes, they impact us. but moral reasoning जो है ना, okay, that doesn't develop as such with life. moral reasoning आपको exclusively study करना पड़ता है. Okay, you need to join ethics classes, you need to learn Bentham, you need to learn Kant, you need to learn Gandhi, you need to learn Vivekanand. Okay, you need to read them in depth, understand underlying assumptions of their theories, और उसके साथ आपका moral reasoning develop होता है. So moral reasoning develops through ethical training, okay, through activity of ethical competence development. So through these activities, through ethical training, ethical competence development, reasoning develop, while intuitionism develop with value, life experiences, with emotional experiences. Then moral intuition का फिर एक एग्जाम्पल जो सपोर्ट में लिखना है आपको, तो then you can write that helping someone if fallen from a bike. हम कुछ ज़्यादा प्रोसेस उसमें सोचते नहीं कि वो खुद रैश ड्राइविंग कर रहा था या खुद गिर गया या ट्रिपल सीट गाड़ी चला रहे थे. वी जस्ट हेल्प देम, दैट्स मोरल इंट्यूशनिज्म. ओके, या लार्जली मैंने जो बोला कि एवर्जन टू कैनिबलिज्म, वी डोंट, एनिमल्स डोंट ईट देयर ओन स्पीसीज, बहुत कम एनिमल्स में ये होता है. तो एवर्जन टू कैनिबलिज्म इज ऑल्सो वन वे ऑफ योर मोरल इंट्यूशनिज्म. या कोई आप लिफ्ट में जा रहे हो, कोई हेवी सामान लेके कोई आ रहा है, वी जस्ट कीप द डोर ओपन फॉर हिम टू हेल्प हिम, जिसको इथिक्स में एक कॉन्सेप्ट है प्राइमा फेसी ड्यूटीज. तो ये जो प्राइमा फेसी ड्यूटीज वी डू, ओके, जस्ट वी कीप द डोर ओपन किसी के लिए, डजंट मैटर वेदर वी नो दैट पर्सन, या इससे कोई फायदा नुकसान होने वाला है, या वी डोंट डू एनी हायर लेवल कॉन्शियस प्रोसेसिंग रीजनिंग कि एक्शन कितनी सही होगी, ये एक्शन हर कोई करने लगा, यूनिवर्स में कितना प्लेजर होगा, ये कांत ने जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी की बात की, वी डोंट डू दैट. वी जस्ट एज अ प्राइमा फेसी ड्यूटी हेल्प द अदर पर्सन. तो ये सारी गट फीलिंग से जो मोरालिटी चलती है, इमोशनल रिस्पॉन्स से जो मोरालिटी चलती है, दैट्स मोरल इंट्यूशनिज्म. व्हाइल मोरल रीजनिंग मतलब क्या, तो अफोर्ड IPR और वायलेट इट टू सेव मिलियंस ऑफ पीपल. सो अभी जो कोविशील्ड का वैक्सीन बना, बाय वायलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके, ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, वी कुड हैव सेव्ड मेनी पीपल.
बट इज इट एप्रोप्रिएट? तो बेंथम की थ्योरी के हिसाब से वी शुड सेव क्रोर्स ऑफ पीपल बिकॉज और लैक्स ऑफ पीपल हु विल डाई, वी शुड गिव देम द फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन. ओके, सो एक आदमी का नुकसान भी हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायोलेशन से, दैट इज ओके. तो बेंथम का कहना ये रहेगा. बट कांत का जो कहना है, यू शुड अपहोल्ड द यूनिवर्सैलिटी. अगर हर कंट्री में, हर सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेट किए जाए, लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कोई वैल्यू ना हो, देन सोसाइटी में देयर वोंट बी इनोवेशंस. नो वन विल स्पेंड हिज टाइम इन लैबोरेटरी डूइंग रिसर्च, कमिंग अप विथ न्यू वैक्सीन्स. और आज अगर आईपीआर वायलेट किया हमने सीरम इंस्टीट्यूट का, ओके, देन अगले बार जब कोविड का नया डेंजरस वेरिएंट आएगा, देयर वोंट बी एनी वेरिएंट ऑफ कोविशील्ड. सीरम इंस्टीट्यूट वोंट बी प्रोड्यूसिंग एनी new vaccines, they won't be having funding or finances to do that. और उसके बाद जो करोड़ों लोग मरेंगे, फिर लाखों लोग मरेंगे, who will be responsible for that? So IPR should be upheld universally, doesn't matter okay what are the cost and benefits. Okay, you should focus on the right duty. तो कांत का ये कहना है IPR अपहोल्ड करने में, while बेंथम का जो कहना है save lives, okay, end goal matter, okay, cost benefit matters. तो ये सारा प्रोसेसिंग करके, रीजनिंग करके फिर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेता है कंसिडरिंग ऑल अदर सिचुएशन एंड पैरामीटर्स. तो वो जो एग्जांपल है इज ऑफ मोरल रीजनिंग. तो आप दोनों के एक एक एग्जांपल कि बाइक से कोई गिर गया, ओके, या किसी के लिए सिर्फ लिफ्ट का दरवाजा खोलना इज सिंपल मोरल इंट्यूशनिज्म. मोरल रीजनिंग इज बिट हायर लेवल प्रोसेस. ओके, सो 4 पॉइंट्स में भी आपने क्वेश्चन एड्रेस किया, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग. So I hope you are getting a good idea how to approach the question, how to write answers in this. So guys, now you can stay tuned to my Darshanik IAS YouTube channel where you will get other questions recording also. Do check them out. Also join my Telegram channel UPSC Ethics 4 to download these PDFs, this PDF that I have just showed you the content. And also download my app from Darshanik IAS by Kadam sir from Google Play App Store. And stay tuned there. I will be launching very comprehensive ethics and essay courses. So do take advantage of those courses then. So thanks for listening guys. Do like, subscribe and share this video with your friends.